Hello, Assalamualaikum everyone.
Assalamu alaikum to all. It's me, Jayanti Mali, host of today's session. So, welcome to all participants in our today's session. Now, I would like to introduce our today's speaker, Hania Zera Shah. So, she is a legal professional who has been invited to speak upon the topic from case file to courtroom on this platform, Concord Law. With a distinguished career in this legal profession, ranging from litigation before the courts to so in corporate and consistency work, she is also experienced in corporate and consistency work. And Ms. Hania Shah lent her invaluable judgment to versus prominent modes, including the YLA mode in collaboration with KBA and the Hamdard intra and national moot court competition. So her unique combination of experience makes Ms. Shah significant access to the discussion panel. So most welcome, ma'am, in today's session, and thank you so much for giving us your precious time. And so, ma'am, you can start your session. Thank you so much. And yes, dear participants, again, welcome. And there is some rules. Please kindly cooperate with us and don't unmute the speaker during the mic during the session because it creates some disturbance. Okay. So if you have any question, just note down at the end. We will give the time for asking question. Okay. So and don't on the camera. Okay. So please cooperate with us and enjoy the session. Best of luck. Thank you so much. And ma'am, once again, welcome. And now, ma'am, you can continue your class. Thank you, ma'am. Hello, thank you so much, Jayanti, for the warm welcome. Guys, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं अगर my name is Hania Zera Shah and it's been around 2 years that I'm practicing law here in Karachi. So the topic that was given to me by Concord Law is to talk about the mechanisms of criminal practice here in Pakistan. ठीक है, so I will be touching upon CRPC as my topic of the day, and we shall be seeing everything around it. Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, thank you. So let's go forward. अच्छा, last बार मैंने एक session conduct किया था, तो उसमें जी, तो लास्ट बार मैंने जो सेशन कंडक्ट किया था वैसे तो ओवरऑल इट वाज रियली नाइस, द रिव्यूज वर गुड. एक चीज जो मुझे कही गई थी वो ये थी कि यू नो द कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड बी केप्ट इन उर्दू. ठीक है, तो आई विल स्टिक टू दैट. होपफुली मैं ट्राई करूंगी बहुत ज़्यादा जहाँ पे यू नो किसी को ना समझ आए कोई बात या कोई स्टिल कंफ्यूजन हो, जस्ट लेट मी नो. आई एम हियर फॉर यू ऑल, राइट? सो उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा. आई एम अस्यूमिंग कि अगर जो मैं बोलती भी हूँ तो वो भी वही होगा जो बहुत इजीली कन्वेएबल होगा, राइट? तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, विच इज़ एन ओवरव्यू ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पाकिस्तान. ठीक है, अच्छा, नाउ यू नो, ऊपर ऊपर का मोटा मोटा तो सबको पता है कि लिटिगेशन दो तरीकों की होती है. ठीक है, इट्स आइदर सिविल लिटिगेशन और इट्स क्रिमिनल लिटिगेशन. ठीक है, क्रिमिनल लिटिगेशन से आप पे एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है. आपका जो नाम है इन टर्म्स ऑफ योर आईडी कार्ड, इन टर्म्स ऑफ आपका जो एनआईसी होता है, उस सारे पे एक आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है. ठीक है, इट इज विद द एजेंसीज ऑफ योर स्टेट. और अगर सिविल कोई आप पे केस करता है या कुछ करता है, ऑब्वियसली दिस इज अ केस दैट कम्स टू द कोर्ट, लेकिन उसमें फिर आपके एनआईसी, आपके जो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द स्टेट है उस पर कोई एज सच इशू नहीं आता, राइट? तो सिविल साइड को एक साइड पे रख के हम क्रिमिनल आज डिस्कस कर रहे होंगे, राइट? क्रिमिनल में भी अगर आप देखें तो हमारा हाउ द लॉ वर्क्स इज कि हमें 2 मेजर स्टैट्यूट्स दिए गए हैं, राइट? कौन से स्टैट्यूट? अच्छा, स्टैट्यूट इज द लेजिस्लेशन पास्ड बाय द लॉ मेकर्स, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है. हम डिराइव कहाँ से करते हैं? यूके के लॉ से बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि यू नो हाउ इंडिपेंडेंस अकर्ड, हाउ एवरीथिंग अकर्ड. सो डेरिवेशंस हमारी यहाँ की हैं. फिर आते आते नाउ द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट गिव्स आउट द स्टैट्यूट्स.
ठीक है, जिसे पीस ऑफ लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान में प्राइमरीली, ठीक है, प्राइमरीली का मकसद है कि दो मेजर जो क्रिमिनल कोर्ट्स को रन करती हैं वो दो हैं, one being the PPC, Pakistan Penal Code, and the other one being CRPC, which is Code of Criminal Procedure. पीपीसी के अंदर आपको सारा कंटेंट मिलता है, कंटेंट इन टर्म्स ऑफ के जुर्म क्या है, जुर्म की सजा क्या होनी चाहिए, क्या होगी, ठीक है। जुर्म इन टर्म्स ऑफ के रेप की डेफिनेशन आपको सीआरपीसी में नहीं मिलेगी, वो आपको पीपीसी में मिलेगी, राइट। पीपीसी कैसे जुर्म क्लासिफाई होते हैं, क्या क्या उसकी इंग्रेडिएंट्स मीट करने चाहिए, वो सारा पीपीसी है, राइट। सो पीपीसी इज एवरीथिंग कंटेंट बेस्ड, एंड सारा कुछ चलेगा कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सीआरपीसी आपको देता है। अब ऑब्वियसली अगर कोई क्राइम कमिट होता है इन टर्म्स ऑफ रेप ले ले, मर्डर ले ले, जो भी ले ले, क्राइम हो गया, अब क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू एजुकेट अपॉन द मैटर, वो हमें सीआरपीसी सिखाता है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज व्हाट वील बी प्राइमरली कवरिंग, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू सीआरपीसी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। सबसे पहले तो CRPC is an abbreviation. The entire terminology is Criminal Procedure Code, right? So I'll just read it out for you. ये मैंने जब presentation बनाई थी तो I just wanted it to be as simple as it can get, ठीक है। तो मैंने वही अपनी ही basic terms में, basic लफ्जों में लिखा है, so that आप अगर screenshot भी लेना चाहे presentation के, you can get that done. Otherwise ये presentation मैं टुवर्ड्स द एंड कॉन्कॉर्ड लॉ वालों को भेज भी दूंगी, सो दैट अगर किसी को वो चाहिए होगी या कुछ, सो यू कैन ऑलवेज वर्क दैट आउट, ठीक है। सो द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ पाकिस्तान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क दैट आउटलाइंस द प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ इन पाकिस्तान। जैसे हमने बात कवर की कि ये मैकेनिज्म या प्रोसीजर हमें समझाते रहते, देन एक्चुअल द कंटेंट जिसकी बात हो उसके अराउंड जो भी चीजें होती है कि वो कंडक्ट कैसे होना है, वो सारों को कवर करता है, राइट। It governs the process of criminal trials, investigations, and the administration of criminal justice in the country, right? The CRPC was originally enacted in 1898 during British colonial rule and has been amended several times to meet the evolving legal and societal needs of Pakistan. Again, this is what we've covered. अगर देखा जाए तो क्यों कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई लॉ नहीं मिल रहा, कोई प्रेसिडेंस नहीं मिल रहा, तो इंडियन लॉ से भी हम बहुत बार रेफर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी और इंडिया दोनों की बेसिस ऑफ लॉ जो है वो सिमिलर है, राइट। दोनों ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में बनी थी। अब जाहिर सी बात है फिर उस पर कैसे प्रेसिडेंसेस आए, उसको केस लॉ में कैसे लिया गया है, या उसको फिर आगे उसके कोई अमेंडमेंट स्टेजेस वगैरह हैं तो वो कैसे ली गई, that something is how it was developed later, लेकिन सबकी बेसिस हमारी और इंडियन लॉ की सिमिलर है, राइट। सो दिस इज द रीजन के हम काफी जगहों पे उनसे भी ले रहे होते हैं, उनसे भी हम कंसल्ट कर रहे होते हैं हमारे लॉज कि अगर इफ यू डोंट फाइंड एनी प्रोविजन इन आवर ओन लॉ, या अगर हमें लगता है कि कोई जजमेंट हमारे किसी एक प्रोविजन ऑफ लॉ पे बात नहीं करे तो हम वो इंडिया से लेते हैं अगेन। लेकिन क्योंकि अब कंट्रीज डिफरेंट है, अब वो एक ही बात नहीं है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट बाइंडिंग, बट कुछ हद तक परसुएसिव है कि जी आप देख लें इसमें भी ऐसा हुआ है तो यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाला वैल्यू रखता है, ठीक है। Its importance is in the fact that it gives legal framework for how a criminal case is to be carried out in the courts of Pakistan. Again, CRPC आपको ये नहीं बताएगा कि जी जुर्म, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को मारा, ठीक है, तो मारने की डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, सज्जा या पनिशमेंट्स कैसे कैसे तरीके की हो सकती है, हदूद होती है, ताजीर होती है, ठीक है। सो दीज आर समथिंग जो आपको पीपीसी ही बताएगा। ये जो आपका सीआरपीसी है सिर्फ आपको फ्रेमवर्क देगा। Again, the CRPC of Pakistan is a cornerstone of country's criminal justice system, providing the necessary legal structure to ensure justice, protect individual rights, and maintain public order. किस किस चीजों के लिए सीआरपीसी का होना क्यों जरूरी है? सीआरपीसी कि जस्टिस मिले, ठीक है। जुर्म देखिए, पीपीसी का जो भी सेक्शन होता है वो इफेक्ट में कैसे है, पीपीसी तो बड़ी कागजी बात हो गई, राइट, कि ठीक है उसमें लिखा हुआ है वो जुर्म है। जुर्म को कोर्ट्स तक लाना, फिर कोर्ट सारा प्रोसेस कैसे कंडक्ट होना है, कैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आएगी, उसके एंड तक पहुंचते तक क्या 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 स्टेप्स होंगे, क्या 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 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, वो सारा ये देता है। तो दिस इज द लॉ
which ensures कि justice attain हो. क्योंकि ये justice attain करता है तो it means ये individual rights के protection कर रहा है, and obviously based on this ये public order maintain कर रहा है. ठीक है. अच्छा, CRPC अप्लाई कैसे होगी किसी ऑफेंस पे, राइट? ये तो हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि क्रिमिनल लॉ का इफेक्ट ही तब स्टार्ट होता है जब कुछ हुआ हो, कुछ ऑफेंस हुआ हो, राइट? अब ये आपको दो डेफिनेशंस मिलती हैं. एक सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ऑफ CRPC में इसकी डेफिनेशन है जो कहता है ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. Before getting any further कि ये होता क्या है या इसे define कैसे करें, let's read out the other definition. Other definition is provided by section 40 of the Pakistan Penal Code (PPC). वो कहता है except in the chapters and sections mentioned in clauses 2 and 3 of the section, the word offense denotes a thing punishable, a thing made punishable by this code. अब अगर इजी वे आउट में देखें, इन दोनों डेफिनेशन से एक ही क्रक्स निकलता है, एक ही मतलब निकलता है. व्हाट? कोई ऐसा एक्ट आप करें जो पार्लियामेंट्री लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, वो आपका ऑफेंस है. जो पार्लियामेंट्री लेवल पे या जो स्टेट लेवल पे ऑफेंस माना जाता है उसे प्रोहिबिट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है. इसकी बहुत बेसिक एग्जांपल मैं दे दूं अगर आपको. हमारे पास पाकिस्तान में होमोसेक्सुअल कपल्स जो होते हैं, जो गे या लेस्बियन कपल्स होते हैं, विल दैट फॉल इनटू ऑफेंस? यस. व्हाई? क्योंकि हमारा स्टेट इस चीज को मना करता है, राइट? लेकिन अगर यही सिमिलर एक्टिविटी आप यूरोप के किसी ममालिक, फॉर एग्जांपल फ्रांस में देखो, जहाँ पे अब वो रेगुलेट हो चुका है, ठीक है, वहां पे although the activity is same, एक्टिविटी में फर्क नहीं आ रहा, वहां पे भी होमोसेक्सुअल कपल ही एंगेज कर रहा है इनटू अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. और यहाँ पे भी अगर पाकिस्तान में भी लिया जाए तो वो ही सिमिलर सिचुएशन है, सिचुएशन चेंज नहीं हुई. बट व्हाट मेक्स इट एन ऑफेंस? द लॉज ऑफ दैट स्टेट. ठीक है, अगर जहाँ पे वो प्रोहिबिटेड है फिर भी आप करते हो तो फिर वो गलत है. अगर प्रोहिबिटेड नहीं है तो फिर ठीक है, वो ठीक बात है, सही है. सो अब जैसे होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप हियर इन पाकिस्तान इज एन ऑफेंस, लेकिन अगर आप इसे फ्रांस या किसी USA या किसी और स्टेट से आप देखें तो ये ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता. ठीक है, ऑफेंस सिर्फ वो एक्ट नहीं है, उस एक्ट का प्रोहिबिशन बाय द स्टेट भी जरूरी है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, के कोई ऐसा लॉ है जिसने से पनिशेबल किया, देन ओनली कैन इट बी क्लासिफाइड ऑफेंस. ठीक है, PPC भी यही बात करता है कि जो क्लॉज 2 और 3 में उनको छोड़ के, और उनको क्यों छोड़ा हुआ है? उनको इसलिए छोड़ा हुआ है कि उनकी स्पेसिफिक कोई पनिशेस प्रिस्क्राइब नहीं है बाय लॉ. ठीक है, बाकी जो कुछ भी है जो आपके लॉ ने आपको प्रोहिबिट किया है करने से, वो आप नहीं कर सकते. अच्छा, अब ये तो कोई एक्ट हो गई. अब ओमिशन क्या होता है? ओमिशन इज समथिंग जो आपको कहा जाए कि करना है और आप फिर ना करें. ठीक है, ओमिशन इज समथिंग दैट यू डू नॉट परफॉर्म. अब एक्ट तो आप एक्टिवली कर रहे हो, आपकी एक एक्टिस रिया का एलिमेंट आ जाता है. ओमिशन ये है कि आपसे मांगा जाता है कि आपने ये करना है, फिर भी आप नहीं करते, तो फॉर एग्जाम्पल दैट इज एन ऑफेंस. अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूं तो वन एग्जाम्पल दैट विल फॉल अंडर द एलिमेंट ऑफ ऑफेंसेस, कोई मारने जा रहा है अपने आप को या वो अपने आप को या किसी थर्ड पर्सन को, आपका इंटरवेंशन किस लेवल तक क्या होना चाहिए. ठीक है, अब जैसे UK का लॉ है बाय स्टैंडर्ड लॉ, जिसमें कोई मरे करे जो भी हो, उसमें द अदर पार्टी जो बाय स्टैंडर्ड है उसका कुछ नहीं जाता भाई, वो तो कुछ नहीं करता. उसने तो मुझे नहीं इन्वॉल्व होना, उनका पर्सनल मैटर है, हमें नहीं पता. पाकिस्तान में द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट. पाकिस्तान में अगर ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आपको सबको लायबल कर दिया जाएगा कि जी आपने कुछ नहीं किया या व्हाटएवर, लेकिन टू सम एक्सटेंट आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और अगर आप वो फुलफिल नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है आपके ऊपर अगर एक पनिश है तो दैट विल क्लासिफाई एज एन ऑफेंस, राइट? तो ये ऑफेंस का बेसिक मकसद है. नाउ कमिंग टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस.
सीआरपीसी एक ऑफेंस को 3 कैटेगरीज में, 3 क्राइटेरियाज में डिवाइड करता है। सबसे पहली कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल होना। सो कॉग्निजेबल टर्म का इफ एनीवन नोज अ मीनिंग या इफ एनीवन हैज एन आइडिया क्या होता है, जस्ट स्पीक अप। आप अपने माइक खोल के गिव मी एन आइडिया अबाउट ये क्या होता है। ओके, कंसिडरिंग के मैं ही इसको आगे मैम मैम कॉग्निजेबल ऑफेंस आई थिंक जो कि वेरी सीरियस ऑफेंस जिसमें जो है वो आई थिंक वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो यस द आंसर इज राइट। ठीक है, कॉग्निजेबल को इजी बिल्कुल ही तोड़ के देखें। कोई भी चीज समझने का मकसद ये होता है कि आपको बिल्कुल टू इट्स कोर बात समझ में आ जाए। ठीक है, किताबी बात एक पॉइंट तक रखो, and just make sure that you are actually grasping into everything that you are getting it for। अब मैं अगर इसे बिल्कुल ही जैसे अभी जिन्होंने रिप्लाई किया बिल्कुल करेक्ट बोला, ठीक है, मैं इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं, कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकता है, पकड़ सकता है, राइट। नॉन कॉग्निजेबल हाउएवर ऑन द अदर हैंड वो ऑफेंस है जिसमें आप पे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं आता। ठीक है, जैसे कि आप में से किसी ने कहा कि उसमें वारंट की जरूरत पड़ती है, कुछ पड़ती है, राइट। सो कॉग्निजेबल द पुलिसमैन मैम कैन योर कम। वॉइस इज नॉट क्लियर। Okay, is it clear now? Is it clear now? यस मैम। Okay. ठीक है, सो आई वॉज ऑन द पॉइंट दैट कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल में फर्क क्या होता है। कॉग्निजेबल वो है जिसमें आप पे डायरेक्ट अरेस्ट हो सकता है, पुलिस आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ही डज नॉट नीड एनी वारंट एनीथिंग इन पर्टिकुलर। और नॉन कॉग्निजेबल इसका उलट हो जाएगा, विच इज के some sort of warrant is required। ठीक है, अब जो भी ऑफेंस 3 साल से ज्यादा की सजा रखता है वो कॉग्निजेबल होता है, और जो भी ऑफेंस आपको नॉन कॉग्निजेबल की कैटेगरी में मिलेगा वो ऑफेंस है जिसकी 3 साल से कम की सजा हो। ठीक है, अगेन ये कैसे पता चलेगा, पीपीसी में इसका स्केड्यूल बना हुआ है कि पनिशमेंट्स हर पहले पीपीसी का आप रनिंग जो पैटर्न देखेंगे वो यही देखेंगे कि सबसे पहले आपको ऑफेंस बता दिया जाता है कि ये है क्या, फिर उसकी कि पनिशमेंट या उसको आपको क्या आप पे इम्पोज किया जाएगा वो होगा। ठीक है, तो उसमें अगर आप एक ब्रैकेट देख लें उसमें आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि 3 साल से कम वाली क्या सजाएं पनिशमेंट्स है, 3 साल से ज्यादा वाली क्या पनिशमेंट्स है। ठीक है, सो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल पुलिस से होता है विथ रिगार्ड्स टू कि कोई आपको पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट। कमिंग टू द सेकंड वन विच इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। अब बेल का अल्फाज तो हमने सबने सुना है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें आपको इजीली बेल मिल जाएगी। अब ये वो सजाएं हैं जिसमें 10 साल से कम की आपको years ऑफ प्रोहिबिशन मिले जाए। और नॉन बेलेबल इसी का हो जाता है कि जी अगर आप ऐसा कोई ऑफेंस किया हुआ है जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा की है तो वो नॉन बेलेबल बन जाता है। नॉन बेलेबल में अगेन एक और जो स्क्रूटनाइज होते हैं उनको प्रोहिबिटरी क्लॉजेस भी कहे जाते हैं कि जी इन सूरतों में तो बिल्कुल ही बेल नहीं देंगे हम। अब एक एग्जांपल मैं आपको जैसे बता दूं, मर्डर ले लेते हैं। ठीक है, मर्डर आपको क्या लगता है बेल है या नॉन बेलेबल है? इट विल बी नॉन बेलेबल। क्यों? क्योंकि उसकी 10 साल से ज्यादा की सजा है, और उसमें भी इट इज प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर फॉल करता है। वाई? क्योंकि द ग्रीवियसनेस ऑफ इट इज अ लॉट। ठीक है, अब इसी चक्रों में हम ले लेते हैं जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, नार्कोटिक सब्सटेंसेस देखा जाए उसकी भी 10 साल से ज्यादा की सजा होती है, राइट। सेक्शन 9C में अगर हम देखें CNSA नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट में, दैट इज अगेन नॉन बेलेबल। लेकिन डज इट फॉल इनटू नो, क्योंकि उसकी ग्रीव इतनी ज्यादा नहीं है। सो दैट इज दैट। एंड लास्ट जो है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल मतलब क्या, रफा दफा मामला किया जा सकता है या नहीं, या
बात करके देख के सेटलमेंट पे पहुंच जाते हैं, नहीं कर सकते, तो उस सूरत में उस किसी ऑफेंस को हम कंपाउंडेबल कहते हैं। अब आप देखें तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है। सबसे पहला वाला पुलिस या पुलिस गिरफ्तारी से बचने की पॉइंट को कवर करता है। सेकंड जो है वो बेल पे आ जाता है कि जी अगर आप अरेस्ट हो चुके, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप जेल में ही रहोगे या बाहर निकल, उसको बात उस चीज पे बात करता है। एंड द थर्ड वन बीइंग कि कंपाउंडेबल, क्या ये मैटर आप आराम से बैठ के सुलझा सकते हो, यू फिगर अ वे आउट ऑफ इट या नहीं, ये उसके बात करते हैं। ठीक है, तो तीन बेसिक मेन कैटेगरीज बना दी हैं जज करने के लिए, असेस करने के लिए कि ऑफेंस किस टाइप में, किस कैटेगरी में फॉल होगा। ठीक है, तो इससे अगर देखा जाए तो अगर कभी भी ऑफेंस आपको पुट इन करना है, पिन इन करना है, तो आप एक टेबल की सूरत में इसे देखें कि एक टेबल में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल लिखा हुआ है, एक टेबल में बेलेबल नॉन बेलेबल लिखा है, और एक में कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल है। कोई भी ऑफेंस ले लिए, कोई भी सेक्शन ले ले, और उससे इन 6 कैटेगरीज में किसी में भी फिट करने की कोशिश करें। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सी वेदर आपका जो ऑफेंस है, ऑफेंस क्वेश्चन है। आई एम अज्यूमिंग, आप जाहिर सी बात है जितने भी पार्टिसिपेंट्स है दे आर लॉ स्टूडेंट्स, राइट, या वांटिंग टू परस्यू विथ लॉ डिग्रीज। तो अगर फ्यूचर में अगर आपने कभी डिसाइड करना यू वांट टू और यू विलिंग टू प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? आप एक टेबल बना लेंगे एंड देन यूल एग्जैक्टली नो कि अच्छा ये ऑफेंस इस लेवल में या इस क्राइटेरिया में आ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर यू विल सी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल में आ रहा है, ठीक है, वो आ ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ रहा है कि आपको बगैर वारंट तो पुलिस उसे पकड़ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया, तो आप अपने जज के सामने सबसे पहला पॉइंट ये रखेंगे कि जी बेल हमें चाहिए अपॉन द आइडिया कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब यस, आप फिर ये भी बात करेंगे दिस इज ऑल्सो अ बेलेबल और अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप ये कहेंगे कि द फैक्ट कि ये बगैर वारंट तो अरेस्ट हो ही नहीं सकता, तो कैसे आपने इसे इलीगली डिटेन कर दिया। ठीक है, दिस ऑल्सो इन्वोक्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन। हाउ? इलीगल डिटेनमेंट नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है, आपको राइट टू मूवमेंट, फ्री मूवमेंट, सबका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अगर किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस ने आपको गिरफ्त में लिया है, इट मींस उन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वॉयलेट किया। तो नॉट ओनली अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, आप एक उस पर सीपीवी फाइल कर सकते हैं बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। अच्छा, अब जैसे कि हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि स्टेजेस क्या होते हैं। सीआरपीसी डिफाइंस ऑल स्टेजेस दैट नीड टू बी कैरिड आउट फॉर द प्रोसेस ऑफ द क्रिमिनल केस। ठीक है, तो उसमें हर क्रिमिनल केस की जो बेसिक स्टार्ट पॉइंट होगा वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ठीक है, the FIR is a written document prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense. It serves as the starting point for the police investigation and is essential for criminal justice process. कुछ गलत हुआ, आप कोर्ट तक कैसे लाएंगे? आप पुलिस के पास जाएंगे, आप अपनी जो भी सिचुएशन है, जो भी फैक्ट्स कैरी आउट हुए, आप वो बताएंगे उन्हें और आप कहेंगे कि जी हमारी एफआईआर काटें आप। ठीक है, एफआईआर इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के एक्चुअल हुआ क्या। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं जो फिल आउट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो हमें सेक्शन 154 में बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के वाकया कब पेश आया, वाकया किस जगह पे हुआ, राइट, किसने, हु इज द कंप्लेनेंट, किस सेक्शंस के अंडर इनका ऑफेंस या क्राइम फॉल कर रहा है, तो वो हमें सारा फिल आउट करना होता है। और नीचे एक पे पैराग्राफ होता है जिसमें पूरी डिटेल्ड स्टोरी लिखी हुई जाती है कि जी ऐसे ऐसे ये सारा सिचुएशन कैरी आउट हुई। ठीक है, हमने ये पॉइंट कवर कर ही लिया। सेक्शन 154 आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एन एफआईआर। अच्छा, ये तो ठीक है कि आउटलाइन हमें पता चल गई कि हम लिखवाएंगे कैसे, हम भरवाएंगे कैसे, लेकिन अमूमन लोगों को नहीं पता होता है कि जी इसे हमें कैसे रीड करना है। वहां पे तो ठीक है, एफआईआर हो गई, ये हो गई, वकीलों के जोर पे आजकल मोस्टली ये भी है कि हो जाती है एफआईआर, अगर आपकी लॉज हो भी जाती है,
एफआईआर का पर्चा आ गया, एफआईआर का पेपर आ गया, अब यू डोंट नो कि अच्छा कहाँ पे कैसे मैं क्या पढूं. सो इसके लिए आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू अ लिटिल वीडियो. कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, ma'am. Acha. So this is my channel, a podcast channel which aims to cover everything. अभी तो सिर्फ हमने ज़्यादा कुछ स्टार्ट नहीं किया, हमने हमारी जर्नी का बताया या टीम के बारे में है. इसमें there is a short. I'm मैम sorry. वीडियो स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही, वही एफआईआर Yes, वाली. ma'am. I think मैं समझी. Yes. Sorry. स्क्रीन कौन सी अभी तक प्रेजेंटेशन स्क्रीन है? यस मैम. Yes, ma'am. Yes. Presentation is visible, not video. Video Okay, screenshot. let me come to that. Ji, can you see it now? यस मैम. yes, इट्स ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, give me a moment. I just have a call from a client and it's very important. मैं 1 मिनट 8 सेकंड में आ रही हूँ, ठीक है? नहीं बस ठीक है. Okay, I am back and I'm so sorry. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, तो हम इस पे थे कि I have come across, this is the page, podcast page. अभी तो ज़्यादा नहीं है, अभी just you kind of will have to see क्या है कैसा है, but इसमें हमने एक short prepare किया है which talks about how to read an FIR. अब आपको ये वीडियो 50 सेकंड की है या कुछ है, आप ये बस देख लें and I think it will make a lot more sense कि हम अभी किस बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? So here you go. कैसे पढ़ी जाती है एक्सट्रीम लाइक एफआईआर नंबर गिरफ्तारी पर वक्त रुपया इंसिडेंट का पेश है. नीचे चलते यहाँ पे तारीख में रिपोर्ट तक कटवाई गई. जितना ज़्यादा टाइम होता है टाइम ऑफ इंसिडेंट में सेक्शन ज़्यादा जैसे कि सेक्शन से मर्डर और नीचे चलते यहाँ पे डिस्टेंस आ जाता है. ये भी एफआईआर रिकमेंड करने का बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है. आइए का नाम जो कंप्लेनेंट है इस एफआईआर में जैसे कंप्लेनेंट हमारा पुलिस वाला ही है. फिर सारे फैक्ट्स आते हैं, इसमें सारी मशीनें आते हैं जिसकी बेसिस पे बेल मिल सकती है. इन्हीं फैक्ट्स को बेल में इस्तेमाल किया जाता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल किया जाता है. एफआईआर कैसे पढ़ी जाती है एक्सट्रीम राइट. ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी विद एम के, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेस इन्फॉर्मेशन होने के साथ ये बेसिकली फिर भूल जाते हैं या समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल पर उसे अप्लाई कैसे करें, राइट? अब प्रोसीजर तो है कि एफआईआर ऐसे ऐसे आप भर दें, लेकिन वो पढ़ें कैसे, तो फिर दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने थ्रू दिस कवर करने की कोशिश की है, कि जहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताया जाए कि सबसे पहले आपके एक्सट्रीम राइट पे आपका एफआईआर नंबर आता है, थाने का नाम आता है, रिपोर्ट कटवाने का मतलब पहले टाइम आता है कि टाइम ऑफ इंसिडेंट क्या था, डे ऑफ इंसिडेंट क्या था, फिर रिपोर्ट कटवाने का टाइम आता है. तो ये प्रिटी मच इस क्विक एक शॉर्ट में कवर होता है, ठीक है? यू कैन ऑलवेज विजिट इट बाद में भी जाके. अब मैं वापस से आ जाऊं हमारी वीडियो, हमारी प्रेजेंटेशन पे, सॉरी. ठीक है. So this is how the first information report is also read. ठीक है. इसके की फीचर्स क्या थे कि जो भी जुर्म है वो एटलीस्ट कॉग्निजेबल तो होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एफआईआर इख्तियार दे रहा है पुलिस वाले को कि जी अगर कोई कल इनसे पूछे कि जी आपने किस बेसिस पे इनको गिरफ्तार किया या किस बेसिस पे इनको पकड़ा, तो वो ये एफआईआर का पेज दिखा सकते हैं. वो ये कह सकते हैं कि जी देखिए इसमें जो सेक्शंस थे वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, इसकी बेसिस पे जाके हमने उनको पकड़ा है.
सबसे पहले तो देयर मस्ट बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. सेकंड, द इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड मस्ट बी डिटेल्ड एंड शुड स्पेसिफाई द ऑफेंस सेक्शन. ठीक है. अब ये अगर आपने वीडियो टेंटेटिवली देखी हो, कॉन्सेंट्रेट करके देखी हो, सॉरी, तो आपने ये देखा होगा कि उसमें ऑफेंसेस का भी सेक्शन था कि जी आप बताएं कि आपके साथ कौन से ऑफेंस हुए हैं कैरी आउट, एंड फिर नीचे सारा एक पैराग्राफ फॉर्म में बताया गया था कि एक्चुअली हुआ क्या है. तो आपने एक जिसके साथ भी जो भी कंप्लेनेंट है उन्हें एक अकाउंट देना होता है, एक डिटेल्ड अकाउंट दे सके कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कोई और अगर उसके सराउंडिंग विटनेसेस थे नहीं थे, वो सारा कुछ उस पैराग्राफ में कवर होता है. एंड ऊपर जिस कॉलम में सेक्शन स्पेसिफाई होने होते हैं उससे पता चल जाता है कि ये सेक्शंस किसके अंडर कर रहे हैं. ठीक है. The informant shall sign and receive the copy of an FIR. अब what does this mean? आपको पता है कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की तभी वैल्यू है कि जो कह रहा है वो उस पे अग्री भी करे कि जी हाँ ये मेरा बयान है. ठीक है. तो आपसे FIR भी जब कट, जो कंप्लेनेंट है उनसे कहते हैं कि जी आप साइन करें, हमें बताएं कि जी ये जो लिखा है ये आप ही का बयान है और आपने ही ये जो एग्जैक्ट बोला है वो हमने लिखा है. ऑल्सो जस्ट FYI गाइज, जो एग्जैक्ट अल्फाज कंप्लेनेंट के होते हैं वही यूज होते हैं. ठीक है. तो अगर पुलिस वाला, अब ऑब्वियसली वो खुद तो बंदा नहीं लिख रहा ना FIR, लेकिन पुलिस वाला ही लिख रहा है, लेकिन he will write as if the other person is writing. तो वो जैसा जैसा जो जो बताता जाएगा वो वैसा वैसा ही लिखता जाएगा. ऐसे लग रहा होता है कि कंप्लेनेंट इज डिक्टेटिंग की FIR टू द पुलिसमैन. पुलिसमैन कभी थर्ड पर्सन की तरह कि जी ये कंप्लेनेंट आया, इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ. हमेशा मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे साथ वैसा हुआ. क्यों होता है? क्यों? क्योंकि द कंप्लेनेंट इज हिमसेल्फ, व्हाटएवर is stated by the complainant is what is put into the FIR. ठीक है. सो आई एम होपिंग कि आपको FIR अभी अच्छी खासी क्लियर हो गई होगी कि दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट. ठीक है. अब स्टेजेस इन क्रिमिनल लिटिगेशन में हमने क्या देखा? हमने देखा कि सबसे ओके, सो वी आर बैक. ठीक है. सो अभी तक हमने फिर कवर कर लिया था कि स्टेजेस इन क्रिमिनल लिटिगेशन में सबसे पहला स्टेप इज FIR, which is first information report. चले, FIR कटवा दी. अब आगे क्या होता है? तो आगे FIR पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है बाय द पुलिस. ठीक है. टोटल 14 डेज का टाइम दिया जाता है पुलिस को, जिसमें उन्हें एक चालान रेडी करना होता है या जो भी उसके साथ अगर कोई एविडेंस वो कलेक्ट कर पाए तो वो एविडेंस भी थ्रू चालान पेश कर देते हैं. ठीक है. अब इसको जी इन्वेस्टिगेशन में वो फिर चालान पेश करते हैं. अब ये वैसे तो टाइम होता है 14 दिन का, लेकिन मोस्टली हम प्रैक्टिसेस में क्या देखते हैं कि वो पुलिसमैन आके जज के सामने, कोर्ट के सामने बता रहे होते हैं कि दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर द चालान या कुछ, तो फिर वो टाइम मांग लेते हैं. तो इसमें अगेन अगर आप स्ट्रिक्ट बाय द बुक चलेंगे सो देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ 14 डेज, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो उतना ज्यादा अप्लाई नहीं होता. राइट. इन्वेस्टिगेशन आ गया, चालान आ गया, फिर स्टार्ट होती है जज की जो इंक्वायरी है वो स्टेज. ठीक है. इंक्वायरी में जज पहले बिठा के पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम या हाउ इज देयर एनी वे आउट ऑफ द सिचुएशन. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बेसिकली देखिए हर प्रोसेस में एक जो प्री ट्रायल स्टेज है वो तो रखा ही जाता है. ठीक है. जिसमें प्री ट्रायल में एम ये किया जाता है कि अगर कोर्ट के आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो सकती है, आउट ऑफ कोर्ट रिलीफ मिल सकता है, तो वन माइट जस्ट गो फॉर दैट. प्रिलिमिनरी हो जाता है, जज के सामने फिर बयान होता है. ठीक है. यहाँ तो फिर मुजरिम जो होता है वो कहेगा कि आइदर ही इज गिल्टी और ही इज नॉट गिल्टी. अगर उसने प्लीड गिल्टी कर दिया फिर तो बात ही खत्म हुई, वो गिल्टी में चला गया, उसको सेंटेंस हो गया. ठीक है. जो भी एज पर हिज क्राइम, एज पर द ऑफेंस ही हैज कमिटेड, जो भी सजा थी वो उसमें चला गया. अगर वो नॉट गिल्टी कहता है तो फिर
ट्रायल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस होती हैं, बेसिक जो आपकी हेयरिंग्स कहलाती हैं कि जी हेयरिंग है, हमें क्रॉस करना है। क्रॉस होता क्या है कि जो का वकील है वो आपसे सवाल जवाब करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की काउंसिल हूँ, ठीक है, अब कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने एक क्लेम किया है, एफआईआर कटवाई है अगेंस्ट माय क्लाइंट, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई क्लाइंट। तो सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, मतलब उसका बयान जो है वो उसे बोलना पड़ेगा। और बयान हमारे पास जो गवर्नमेंट सरकारी वकील होते हैं, या अगर कंप्लेनेंट ने अलग से भी अपना कोई वकील हायर किया हो तो वो कैरी आउट करवाते हैं, और फिर उस पे उस एग्जामिनेशन इन चीफ पे या उस एफआईआर पे चालान में जितने भी प्रोविजंस होते हैं उसकी बेसिस पे आई बीइंग दी काउंसिल फॉर माय क्लाइंट हु इज द अक्यूज्ड, मैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगी कि क्या ये बात सही है, आपने ये लिखा है वो लिखा है। इसका रीजन क्या होता है कि हम केस को तोड़ना चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि जी हम ये प्रूफ कर पाए कि जो भी इनका बयान है, जो भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है, एक्सप्रेस किया, वो गलत है, और ये फिर एफआईआर झूठी है, गलत तरीके से मुलजिम के खिलाफ लॉन्च की हुई है। सो ऑल ऑफ दैट फॉल्स इनटू द ट्रायल प्रोसीजर। एंड फिर जैसे ही ट्रायल खत्म हो जाता है, प्रोसिक्यूशन अपनी हेयरिंग्स करता है, अपनी तरफ से अपने क्लेम्स और पॉइंट्स उठाता है, अक्यूज साइड का वकील अपनी तरफ से जो भी पॉइंट्स और क्लेम्स है वो बनाता है। ऑल्सो जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती है उसमें कोई नया पॉइंट नहीं आ सकता, हैज टू बी समथिंग जिसपे क्रॉस एग्जामिनेशन किया हो। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इसलिए कहते हैं कि सिर्फ आप एफआईआर तक ना रहें, आप भी देखें, चालान भी देखें, जो बयान लिए जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसेस प्रोसीडिंग, वो भी सारे आपने कंसिडर करने होते, ताकि फिर आप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में ये ना कहें कि जी उसमें तो उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये लिखा तो उनकी बेसिस पे मैं ये क्लेम कर रहा हूँ। जिस चीज पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की गई वो पार्ट ऑफ द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का नहीं हो सकता। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कवर एवरीथिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई थी एफआईआर वाली, उसमें भी मैंने यही कहा था कि ये जो आपको फैक्ट्स दिए हैं एफआईआर में वो बेल आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज होता है एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज होता है, राइट। सो दिस डज नॉट मीन कि अगर मैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स वहां पे कह रही हूँ मीन कि सिर्फ एफआईआर के ही जो कंटेंट्स है उसी से फाइनल आर्ग्यूमेंट्स निकलेंगी। नो, इट इज कंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग जो भी ट्रायल में चला है, उन सारों का मिक्सचर बन के फिर आपकी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स आती है, ठीक है। एंड देन जैसे ही फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है जजमेंट, ठीक है, फिर इस पे एक कोर्ट की जजमेंट आ जाती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि वैसे कन्विक्शन हो गई, कन्विक्ट हो गया, मतलब वो कोर्ट ने जो अक्यूज है उसको गिल्टी फाइंड किया है, या तो फिर अक्विटल मिल जाता है, मतलब जज ने अक्यूज्ड को नॉट गिल्टी फाउंड किया है, ठीक है। अब देखने को तो ये सिर्फ 5 पॉइंट्स में हमने सारे स्टेजेस कवर कर लिए, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। रीजन बीइंग के पुलिस टाइमली नहीं आते, पुलिस टाइमली अपनी रिपोर्ट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, कभी कभार कंप्लेनेंट की तरफ से एडजॉर्नमेंट्स आ रही हैं, कभी कभार अक्यूज्ड की तरफ से एडजॉर्नमेंट्स आ रही हैं, कभी कभार टेक्निकल इश्यूज हैं या पब्लिक कोर्ट हॉलीडेज हैं, तो जो भी करके एंड ईच केस इज देन पुट आफ्टर एटलीस्ट 1 वीक, ठीक है। क्रिमिनल केस में एटलीस्ट 1 वीक का टाइम दिया जाता है, उससे पहले तारीखें नहीं लगती, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ ऑल द प्रैक्टिकल शॉर्टकमिंग्स दैट वी हैव, इसकी वजह से ये प्रोसेस काफी लंबा भी चलता है। कैन यू हेयर मी गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब वो तो था कि पूरा प्रोसेस क्या था, ठीक है, कि अगर एक प्रॉपर आपने केस चलाना है फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अप टू इट्स एंड, कि वो कैसे चला क्या हो, ठीक है। लेकिन देर आर अदर प्रोविजंस एज वेल, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कंप्लेंट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 200 टू सेक्शन 203 ऑफ द सीआरपीसी। ये होता क्या है कि इसमें आपको पुलिस के पास जाके एफआईआर कटवाने की कोई जरूरत नहीं होती, यू मेक अ डायरेक्ट कंप्लेंट टू दी मैजिस्ट्रेट, ठीक है। जो आपके जज साहब है आप उनको डायरेक्टली कंप्लेन करते हैं। ये क्यों यूज होती है? वहां पे पुलिस मैटर्स होते हैं, ठीक है, केसेस ऑफ पुलिस इनएक्शन, या जहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। देखें जैसे हमने कवर किया था
कि पुलिस एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस पे ही काटेगा और उस एफआईआर की बेसिस पे जाके वो पकड़ेगा, राइट, किसी को भी गिरफ्तार करेगा। कोई ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है ही नहीं, मतलब पुलिस जाके अरेस्ट कर ही नहीं सकती, तो क्या रेमेडी है? फिर तो आप नहीं एफआईआर करवा सकते। देन यू गो टू द मैजिस्ट्रेट एंड देन वहां पे आप डायरेक्टली कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज वन इंस्टेंस। और दूसरा केस ऑफ पुलिस इन एक्शन, पुलिस इन एक्शन जहाँ पे पुलिस ने ही कुछ ऐसा किया है जहाँ पे आपने उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी है, ठीक है। इसका मैं आपको एक बहुत ही रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी करंट अफेयर्स में बताऊंगी। आई एम श्योर आप सबने ये न्यूज़ फॉलो की होगी, जो एसएचओ गुलशन ए जौहर का कोई थे जिन्होंने किसी वकील के साथ बदतमीजी की थी, बहुत मारा पीटा था, तो वो फिर सस्पेंड भी हो गए थे, और खिलाफ एफआईआर कटी थी, राइट। अब एसएचओ की बात हो रही है। द फैक्ट कि उन्होंने किसी वकील के साथ बदतमीजी की, वकील ने अपने कम्युनिटी के और लोग मंगवा लिए, अपने और लोग बुला लिए, प्रेशर बिल्ड किया, मीडिया कवरेज थी बहुत ज्यादा, इन एंड आउट की भी, ये पूरा कराची बार एसोसिएशन इन्वॉल्व हो गया था, इतने ज्यादा प्रेशर की बेसिस पे फिर उस एसएचओ के खिलाफ एफआईआर कटी एंड उस पे एक्शन लिया गया। अब फॉर एग्जांपल ये वकील नहीं, कोई और नॉर्मल रैंडम कोई इंसान होता, तो उसमें तो इतना प्रेशर नहीं बिल्ड होता, उसमें तो इतना ज्यादा नहीं क्रिएट होता सिचुएशन कि जी एसएचओ के आप एफआईआर भी कटवा सके और एसएचओ को आप सस्पेंड भी करवा सके। लेकिन क्या अगर पुलिस ने किसी रेगुलर ऑर्डिनरी इंसान को अपार्ट फ्रॉम वकील मारा, तो क्या उसके राइट्स नहीं है कि वो अपने आप के लिए कोई प्रोटेक्शन सीख करे? सो अंडर सच अ सिचुएशन फिर वो डायरेक्ट कंप्लेंट के अंदर जा सकता है, ठीक है। ये मैंने सेक्शंस आपको बता दिए कि किसके अंदर कवर होते हैं। हाउएवर वन पॉइंट दैट हैज टू बी नोटेड, हमसे कोई चीज मिल रही है, आप जैसे सोचे पुलिस के हासिल से बचकर डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो, तो अगर जहाँ पे आपको इतना ज्यादा बेनिफिट है तो उसकी स्क्रूटनाइजेशन भी उतनी ज्यादा होती है। स्क्रूटनाइजेशन का मतलब कि उसको फिर उतने ही लेवल से बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर डाला जाता है कि ये मेक श्योर किया जाए कि जो आप कंप्लेंट लेके आए वो जेन्युइन है भी, या ऐसी हवाई आपको थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उस पर आपने इनिशिएट कर दी डायरेक्ट कंप्लेंट। सो अगर आपको लग रहा है ओ ठीक है डायरेक्ट कंप्लेंट, लेट मी जस्ट टेल यू, डायरेक्ट कंप्लेंट्स बहुत मुश्किल से कैरी फॉरवर्ड होती हैं, अदरवाइज डायरेक्ट कंप्लेंट्स को डायरेक्टली ही डिसमिस कर दिया जाता है। वाई? क्योंकि उसका बर्डन ऑफ प्रूफ कि आपको प्रूफ करनी पड़े हर चीज, वो ज्यादा सॉरी गाइस। सो जी मैं यही पॉइंट कह रही थी कि उसका बर्डन ऑफ प्रूफ ज्यादा बढ़ जाता है एंड यू हैव टू बी मोर केयरफुल विथ वॉट एवर यू आर पुटिंग इन योर डायरेक्ट कंप्लेंट, ठीक है। अब डायरेक्ट कंप्लेंट का भी प्रोसीजर आप एक बार देख लें कि उसमें सबमिशन ऑफ कंप्लेंट होती है, वो डायरेक्ट टू दी ऑफिस ऑफ द मैजिस्ट्रेट जाती है, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स होगी, आपको बयान देना पड़ेगा कोर्ट के सामने, कोर्ट प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी करेगा, इसमें इंक्वायरी की बेसिस पे वो अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। अब अगेन इसमें सेटिस्फैक्शन का बर्डन ऑफ प्रूफ ज्यादा आ जाता है। इशुएंस ऑफ प्रोसेस एट द एंड ऑफ इट, अगर वो अपनी इंक्वायरी से जज साहब खुश है कि जी आपकी जो कंप्लेंट है उसमें कुछ वजन है, कोई बात है, तो फिर वो आगे जो फिर हमारे स्टेजेस ऑफ सीआरपीसी थे कि जी अब इस पे चालान आएगा, इसमें ये होगा, फिर वो सारा प्रोसेस कंटिन्यू होता है। इफ नॉट, इफ जज इज नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर आपकी वहीं पे डिसमिस हो जाएगी कंप्लेंट, ठीक है। Coming to another element of CRPC, which is bail. Bail, आई एम श्योर आप सबको बहुत वाइडली, बहुत वास्टली पता होगा। अगेन जस्ट टू लाइक पिंच आउट ऑन टू द आइडियाज ऑफ इट, बेल दो तरीकों की प्राइमरीली होती है, ठीक है। वैसे तीन होती है, कागजी एंटिसिपेटरी बेल भी एक होती है, बट हम उसे बेल बिफोर अरेस्ट के ही एलिमेंट में ले आते हैं। तो प्रोसीजरली हम दो बेल्स को बाइफरकेट बेल को दो सेक्शंस में कर सकते हैं। एक होती है बेल बिफोर अरेस्ट, कि जहाँ पे एफआईआर तो कट गई है, मुलजिम अभी पुलिस ने पकड़ा नहीं है, मुलजिम को पता चल जाता है कि उसके खिलाफ एफआईआर कटी है, वो खुद कोर्ट में जाके अपना
सीख कर सकता है प्रोटेक्शन कि जी ये चीजें हैं और मैं गुनहगार हूँ जो भी हूँ, और फिर वो सारा बता देता है कि जी मैं श्योरिटी जमा करवाने के लिए तैयार हूँ कि आप मुझे बेशक पैसे रख लें, श्योरिटी रख लें और उसकी बेसिस पे मुझे रिहा कर दें, मुझे कैद होने से बचाए। ठीक है। अब जो बेल बिफोर अरेस्ट होती है, क्योंकि उसमें कोई केस चल नहीं रहा होता, देयर इज नथिंग दैट इज ऑन रिकॉर्ड कि जी ये केस पूरा चल रहा है या कुछ है, तो बेल बिफोर अरेस्ट डायरेक्ट आप डीजे ऑफिस में करते हो। आपकी जुरिस्डिक्शन का कोई भी जो डीजे होता है आप उनकी ऑफिस में करते हो। नाउ इट इज ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द डीजे डिस्ट्रिक्ट जज कि या तो वो बेल खुद ही हेयर आउट करेंगे या तो फिर वो अपने किसी एडीजे को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। और फिर वहां पे आपकी बेल चलती है। ये मैटर्स यूजुअली अनकंटेस्टेड होते हैं। अब मैंने अनकंटेस्टेड क्यों लिखा है, वैसे सरकारी वकील तो होते हैं, सरकारी वकील तो हर कोर्ट के असाइंड प्रोसिक्यूशन या सरकारी वकील होते हैं, लेकिन अनकंटेस्टेड इन टर्म्स के कंप्लेनेंट को नहीं पता कि इसने पीछे से आके जो अक्यूज्ड है उसने बेल सीख कर दी है। ठीक है। सो इसीलिए इस पे अनकंटेस्टेड लिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसिक्यूशन से कोई नहीं होता, प्रोसिक्यूशन से होता है, लेकिन द कंप्लेनेंट हिमसेल्फ डज नॉट नो अबाउट दिस। ठीक है। इसका मैं आपको ड्राफ्ट दिखा देती हूँ अब। ठीक है। तो ये कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया? अच्छा, इसमें थोड़ी सी एरर है। तो एरर भी कि यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा है, यहाँ पे डीजे आएगा। ठीक है। जो बेल बिफोर है वो डायरेक्ट डीजे की कोर्ट से होती है। बेल जो आपका नॉर्मल बेल होती है उसे BA करते हैं एब्रीविएट, और बेल बिफोर अरेस्ट को BBA करते हैं। ठीक है। तो बेल बिफोर अरेस्ट नंबर, फिर जो भी आपको कोर्ट में से जो नंबर मिलता है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अभी जब आप ड्राफ्ट कर रहे होते हैं आप इस पे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। वाई? बिकॉज एट द टाइम ऑफ द ड्राफ्टिंग यू डू नॉट नो आपको कौन सा नंबर असाइन किया जाएगा बाय द कोर्ट। डैश करके आपने साल लगा दिया, जिस साल की बेल है, जिस साल की आप बात करें वो आपने ईयर लगाते हैं। तो जो एग्जैक्ट पूरा नंबर होता है दैट इज हाफ पार्ट इज व्हाट द कोर्ट इज प्रोवाइडिंग यू एंड हाफ पार्ट इज द ईयर इन विच इट वाज कैरिड आउट। आपने अक्यूज्ड का नाम लगा दिया, वो क्या होगा? काशिफ खान। मतलब फॉर एग्जांपल इस बेल में काशिफ खान थे, सन ऑफ लिख के, मुस्लिम अडल्ट। अच्छा, रेजिडेंट ऑफ जरूरी नहीं होता बेल्स में लिखना। वैसे तो अगर आपने देखा हो कि पूरा होता है कि मुस्लिम अडल्ट CNIC होल्डर, फिर पूरा रेजिडेंट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, जो हम सिविल केसेस में ज्यादातर कर रहे होते हैं। इसमें तो वैसे ही इमीडिएट बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे ट्राइंग टू सीक रिलीफ, तो क्या हम बाकी सारी जो अपेरेंटली इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल्ड नहीं जरूरी तो नहीं डालते हम, इतनी ज्यादा उस पर कोई स्क्रूटिनाइजेशन है नहीं। ठीक है। हमने ये डाल दिया एप्लीकेंट स्लैश अक्यूज्ड। अक्यूज्ड क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ FIR कटी थी। एप्लीकेंट क्यों? क्योंकि वो बेल सीक कर रहा है। ठीक है। तो ही डेफिनेटली इज दी एज वेल एज दी अक्यूज, तो दोनों ही आप लिख दें। वर्सेस द स्टेट। अच्छा, कभी भी क्रिमिनल मैटर में आप कंप्लेनेंट का नाम डायरेक्ट नहीं लिखते। कंप्लेनेंट ने FIR कटवाई है, आप FIR के बेसिस पे अरेस्ट हुए हो, तो FIR की बेसिस कहाँ से आती है? इट इज अ गवर्नमेंटल या स्टेट बॉडी दैट इज अरेस्टिंग। ठीक है। तो कभी भी मेक श्योर कीजिएगा कि अब फ्यूचर में जब आप भी अपनी ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे, क्रिमिनल केसेस में इट इज अगेंस्ट द स्टेट, इट इज नेवर अगेंस्ट द कंप्लेनेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। क्योंकि कंप्लेनेंट ने आपको अरेस्ट नहीं किया है, टेक्निकली देखिए तो पुलिस ने आपको अरेस्ट किया। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आपका राइट ऑफ ट्रैवल या आपको इलीगली डिटेन किया या जो भी आपका ग्राउंड है, वो देखा जाए तो वो पुलिस कर रहा है, कंप्लेनेंट खुद से नहीं कर रहा है। राइट। तो जो पुलिस है वो इट्स अ बॉडी, इट्स एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, तो हम स्टेट लिख देंगे कि जी स्टेट इज द रिस्पोंडेंट। ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब फिर यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में आप यूजुअली ये देखोगे, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिविल सूट्स। एक ये हम साइड नोशन बना देते हैं जिसमें FIR नंबर लिख देते हैं कि कौन सी FIR में क्या हुआ है, किस रेलेवेंस से आप बेसिकली आ रहे हैं। ठीक है। आप सेक्शन लिख देंगे। US का मतलब होता है अंडर सेक्शन। अंडर व्हाट सेक्शन? दिस इज अंडर सेक्शन 489F ऑफ PPC।
एंड नीचे पुलिस स्टेशन का नाम, पीएस का क्या है, पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब जैसे ये जो एफआईआर कटी थी, ये कहाँ पे कटी थी, ये टीपू सुल्तान स्टेशन में कटी थी, ठीक है। बेल एप्लीकेशन अंडर 497 पीआर सीआरपीसी लिख दिया आपने, इसका रेलेवेंट सेक्शन लिख के फिर आपने पहले बता दिया कि फुली सबमिटेड करके कि हम क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं। फिर ब्रीफ फैक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। ये सारे फिर आपके ब्रीफ फैक्ट्स आ गए। अच्छा, ब्रीफ फैक्ट्स अपनी तरफ से कहानियां नहीं करनी होती, जो एफआईआर में जो मैंने पोर्शन दिखाया था, जो नीचे था पैराग्राफ गिवन, उसी का बस इंग्लिश आप ट्रांसलेट करके एग्जैक्ट वर्बेटम वर्ड बाय वर्ड वही लिखते हो, ठीक है। ये सारा आपने लिख दिया और फिर नीचे फोटो कॉपी ऑफ द एफआईआर इज एनेक्स्ड एज एनेक्स्चर ए, जो आप जिस एफआईआर की बात कर रहे हो ऑब्वियसली आप उसे अटैच करोगे, ठीक है। अब ये हमने बता दिया कि जी इन ग्राउंड्स पे हम आए, बट आई एम सॉरी कि जी इन फैक्ट्स पे हम आए, इन फैक्ट्स पे हमें बेल चाहिए। ग्राउंड्स क्या होने चाहिए, ग्राउंड्स वो लीगल टेक्निकलिटीज होती है जिसकी बेसिस पे आपको बेल मिलती है। अब जैसे सबसे पहला जो फॉर्मल एक सभी लिख रहे होते हैं अपनी बेल्स में, वो है कि जी हमारा तो सबसे शरीफ है अक्यूज, उसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो अदर साइड की मैलिफाइड इंटेंशन है कि उन्होंने ऐसे उनके ऊपर कुछ कर दिया है। सो हमेशा यूजुअली आप देखोगे प्रैक्टिकली भी कि सबसे पहले तो ये लिखा होता है कि दैट द एप्लीकेंट अक्यूज इज एब्सोल्युटली इनोसेंट एंड फॉल्सली बीन implicated in this case with malified intention and ulterior motive of the police, ठीक है। दूसरे प्रोविजन जैसे दैट द ऑल एलिगेशंस आर फॉल्स एंड बोगस, फिर आपने दूसरा कर दिया एफआईआर के। अच्छा, ये आप नोट करते जाए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो हर एफआईआर में आपने कहनी ही होते हैं। अब देखें इसमें ये बेल बिफोर है, ठीक है। बेल, ये अरेस्ट तो बंदा हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ उसे पहले से ही पता चल गया और उसने जाके अपने लिए बेल ले ली, तो इसमें वो सारे लीगल ग्राउंड्स आएंगे जिसमें मतलब एफआईआर की आप कोई टेक्निकलिटी की एरर शो कर पाओ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल FIR took place on 10/6/2022 and the FIR has been lodged after an unexplained delay of 3 whole months. अब अगेन अगर आप मेरी वीडियो देखो तो उसमें मैंने आपको दिखाया है कि एक सेक्शन ऑफ एरिया वो होता है जहाँ पे हम लिखते हैं कि तारीख वक्त वकूआ, टाइम ऑफ इंसिडेंट, वो अलग से लिखा था, और फिर आता है टाइम ऑफ रिपोर्ट या रिपोर्ट की तारीख। तो जितना ज्यादा दोनों में फर्क होगा इट मींस उतना ज्यादा आपकी एफआईआर वीक है। कि अगर आपके साथ इस पॉइंट पे इस दिन पे कोई वारदात पेश आई है, कोई आपके साथ ऑफेंस हुआ है, तो फिर आपने 3 महीनों के बाद क्यों एफआईआर कटवाई है, ठीक है। आप तो इमीडिएट बेसिस पे कटवा दे। तो जितना कम टाइम होता है इन दोनों डेट्स के बीच में एफआईआर को उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जितना ज्यादा टाइम लैप्स होता जाएगा इट मींस कि एफआईआर की उतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी पे फर्क आता जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये एक बहुत मेन ग्राउंड बन जाता है बेल का कि जी हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये गलती उनकी, ये मैलिफाइडली हम पे केस क्लेम किया। उसका हमने रीजन क्या दिया है कि जी अगर ये कहते हैं कि दिस डेट पे इन्होंने हमारे साथ हमने किया है, तो फिर ये 3 महीने के बाद उठ के क्यों एफआईआर फाइल, इनको तो पहले करनी चाहिए थी, राइट। तो दिस इज वन पॉइंट। फिर नीचे आ जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि that the actual story which had been concealed by the prosecution with malified intention is that the accused is the former employee। अब आपने बता दिया कि जी असल बात ये है जिसकी बेसिस पे उन्होंने हमारी फॉल्स फोकस कटवाई है एफआईआर। अब इस केस में क्या है कि जी मैं पुराना एम्प्लॉय था, मैंने काम छोड़ दिया, मुझे कहीं और से ज्यादा अच्छी ऑफर आई, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कटवा दी, ठीक है। फिर वही सारे आपके पॉइंट्स दैट द अक्यूज्ड पर्सन सून आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब हैड अप्लाइड लोन वगैरह जो लिया था फिर मैंने छोड़ दिया, मतलब ये जो भी आपकी फैक्चुअल स्टोरीज है आप उनको करेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर अगर किसी चीज का आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, आप वो प्रूफ और एविडेंस लगा के अपना हमेशा एनेक्स कर देंगे, ठीक है। कि जी ये देखें हम जो कह रहे हैं हम एक मटेरियल ऑफ एविडेंस के साथ भी कर रहे हैं, हम वो कोर्ट के सामने पेश भी कर रहे हैं, ठीक है। आपका केस ज्यादा मजबूत बन जाता है, आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो ज्यादा मजबूत बन जाती है। और ये मतलब बहुत ही अंडरस्टूड सी एक लॉजिकल बात है ना, अगर कोई आपको ऐसी अल्फाजों में कोई चीज कह रहा है कि जी दिस 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 इज हैपनिंग, और उसको आपको एक
की सूरत में, कोई डॉक्यूमेंट की सूरत में दिखाता है कि जी देखो मैं इसकी बेसिस पे ये कह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस होगा वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम है। ठीक है, फिर ये अगेन सारा कुछ के कैसे क्या कब हुआ। फिर आपका जो लीगल ग्राउंड है वो क्या आ जाता है कि देयर इज नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये पहली बार एफआईआर कटी है इस बंदे पे, एंड वो भी हम कह रहे हैं कि गलत कटी है, तो इट मीन्स कि ये एक ऑफेंडर, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, देयरफॉर इस बेल को कंसिडर किया जाए। The applicant accused is not likely to abscond or tamper with the prosecution evidence. बेल की जाती कि जी ये अक्यूज बाहर जाके कंप्लेनेंट को या पुलिस के किसी काम में अपनी इंटरफेरेंस करेगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि जी वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, उसका तो ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो तो सीधा साधा क्लियर बंदा है। तो ऑब्वियसली दिस इज वन थिंग जो कोर्ट कंसिडर करेगी। एंड देन जो हम एक पॉइंट पहले मैंने बहुत सॉफ्टली टच किया था कि द अक्यूज्ड इज रेडी फर्निश सॉल्वेंट श्योरिटी कि जी आप जमानत के तौर पे कुछ रख लें बेशक कोर्ट में, लेकिन हमें बेल दे दें, हमें प्रोटेक्शन दे दें। और ये भी एक लास्ट एक फॉर्मल ग्राउंड है जो हम लिख देते हैं कि ऑल अदर ग्राउंड्स विल बी सेट एट द टाइम ऑफ द हियरिंग, ताकि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा क्लॉज आपके दिमाग में नहीं आया एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग, लेकिन जब आप फिर से केस को लेके बैठे हैं, किसी दोस्त से कंसल्ट किए हैं, किसी और से सीनियर से पूछवाया, तो आपको पता चल गया कि ठीक है मैं ये भी आर्ग्यू कर सकता हूँ। तो हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एक ये क्लॉज रखते हैं कि जी ये सारे तो पॉइंट्स हैं ही, लेकिन एनी अदर पॉइंट कैन आल्सो बी आर्ग्यूड एट द टाइम ऑफ द हियरिंग्स। ठीक है, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव। ये करने के बाद फिर आपकी प्रेयर आ जाती है। प्रेयर क्या होती है कि जी वी आर सीकिंग बेल बिफोर द कोर्ट। सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफाइड दैट दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, मेरी इससे पहले कोई बेल नहीं हुई, मेरी इससे पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था, ब्ला ब्ला, वो सारा आपके प्रोसीजर है। कराची डेटेड, एडवोकेट फॉर अक्यूज इस पे साइन करेगा और अक्यूज साइन करेगा, तो ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारा आपका बेल बिफोर अरेस्ट की बात आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज बेल बिफोर अरेस्ट। अब हम आ जाते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट पे। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ बेल थी। अब दूसरी टाइप ऑफ बेल क्या है? बेल आफ्टर अरेस्ट इज फाइल्ड इन द ट्रायल कोर्ट। आफ्टर अरेस्ट का मतलब एफआईआर आपके स्पेसिफिक मजिस्ट्रेट तक पहुंच चुकी है, केस चल रहा था, आपको अरेस्ट की गया है। ठीक है, तो आपकी जो भी बेल अब फाइल होगी, ये नहीं होगी कि जी आपका केस यहाँ पे चल रहा है आप बेल कहीं और जाके फाइल करेंगे, आप बेल यहीं पे फिर अपने स्पेसिफिक ट्रायल कोर्ट में फाइल करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें भी यही होता है कि कभी कभार आपने डीजे के पास जाके फाइल करनी होती है, देन इट इज ब्रॉट बैक बिफोर द ट्रायल जज। द रीजन बीइंग कि कभी कभार ये होता है कि ट्रायल जज, अच्छा ऑन पेपर ये है कि फाइल बिफोर ट्रायल जज होगी, लेकिन प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि इससे भी हम डीजे की तरफ लगा रहे होते हैं या एटीजे में भी लगा रहे होते हैं। द रीजन बीइंग कि ये माना जाता है कि ट्रायल कोर्ट के पास पूरा वो मैटर चला है, तो मे बी देयर आर चांसेस कि वो थोड़े से इन्फ्लुएंस होते हैं अपना डिसीजन देने में, तो इसीलिए ये हम आगे भी ले जाते हैं। बेल्स तो अगेन अगर रिजेक्ट हो गई लोअर फॉर्म से, तो वो ऊपर तक जाके हाई कोर्ट से भी आप बेल ले सकते हैं, या तो फिर अगर बेल डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं देता तो आपको वो किसी फॉर्म ऑफ डायरेक्शन दे सकता है, जिसकी बेसिस पे फिर आप आगे अपना केस अपने ट्रायल कोर्ट में चला सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बेल आफ्टर का भी एक ड्राफ्ट दिखा देती हूँ, सो दैट आपको ये भी आइडिया हो जाए। ज्यादा फर्क नहीं होता, वो सेम ही होता है। ऊपर टाइटल आ गया, एप्लीकेंट अक्यूज्ड आ गया, स्टेट आ गया, ये एफआईआर क्या था, पीएस क्या था, सेक्शंस कौन से थे, फिर ये सारे इसमें इसके फैक्ट्स आ गए कि जो एफआईआर में कंटेन होते हैं। ठीक है, फिर हमने एफआईआर की कॉपी एनेक्स कर दी, फिर हमने हमारे ग्राउंड्स लगाने स्टार्ट कर दिए। इसमें भी इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, यही कि हमारे ऊपर तो मैलिफाइड तरीके से बेल की हुई है, आई एम सॉरी एफआईआर काटी हुई है, that all allegations against are false and bogus। फिर जो जो बातें वहां की आएंगी कि द एफआईआर ऑफ टाइम क्या था इंसिडेंट का, इन्होंने कब तक कटवाई, मतलब अनएक्सप्लेनेबल डिले कहते हैं इसे इन लीगल टर्मिनोलॉजी, कि टाइम ऑफ इंसिडेंट से टाइम ऑफ रिपोर्ट आता है, तो दिस देयर हैज बीन अनएक्सप्लेनेबल डिले। एफआईआर के कंप्लेनेंट
रजिस्टर पे नाम नहीं था। अब ये तो जैसे जैसे आप फिर केस की इंक्वायरी, अब जैसे यहाँ पे देखें वो क्योंकि अरेस्टेड है, तो इट मीन्स के एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी ट्रायल कोर्ट में स्टार्ट हो गई है, जो हमने स्टेजेस ऑफ एफआईआर में कंटेन किया था। तो उसमें जाहिर सी बात है रजिस्ट्री आती है, जो जो बाकी चीजें होती है वो सारी भी हम उनमें से भी पॉइंट्स ले सकते हैं। दैट सिमिलरली द एफआईआर इज साइलेंट एज टू वेदर रिकॉर्ड वाज मेंटेन्ड प्रायर टू पुलिस पेट्रोलिंग, पुटिंग डाउट्स ऑन वैलिडिटी ऑफ द केस। ये सारी चीजें हमने कंटेन कर दी। हाफ राइड क्या होता है कि जहाँ पे आप अपर बॉडी को छोड़ के लोअर बॉडी सारी में गोलियां मारते हो, राइट? ठीक है, तो इट मींस हाफ राइड, ऐसे लीगल टर्मिनोलॉजी या पुलिस टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। तो अगर किसी अक्यूज्ड को आपने भी गोलियां मारी और उसे हाफ राइड किया है, इट मीन्स के आपने इंटेंशन से किया, आपने किसी एम से किया है, आपने ऐसे ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं किया। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली इट इज डिपेंडेबल ऑन फ्रॉम व्हाट एफआईआर कंटेंट्स यू हैव, और उसकी बेसिस से ये लिखती है यही नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड वी आर रेडी टू गिव श्योरिटी एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, और ये प्रेयर आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज योर ड्राफ्ट फॉर बेल आफ्टर वाला भी आ गया। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। अच्छा, टाइम भी हो गया है काफी। नाउ आई ट्राई टू जस्ट रैप इट अप। अच्छा, फिर है बेल के बाद ड्राफ्टिंग अपील अगेंस्ट अक्विटल। अब अक्विटल हो गया, ठीक है, किसी भी अक्यूज का अक्विटल हो गया तो आप उसके खिलाफ भी कंप्लेन, आई एम सॉरी, उसके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। आप कौन करेगा? जाहिर सी बात है, अगर अक्यूज का अक्विटल हुआ है इट मीन्स प्रोसिक्यूशन उसे अपील करेगी, या तो फिर कंप्लेनेंट का अगर कोई प्राइवेट वकील है तो वो करेगा। तो वो अंडर सेक्शन 417 ऑफ सीआरपीसी में कंटेन होता है, और उसका पर्पस होता है चैलेंजिंग अ कोर्ट्स अक्विटल डिसीजन। इट मीन्स आप एक कोर्ट डिसीजन को चैलेंज कर रहे हो। इसके स्टेप्स टू ड्राफ्ट एंड फाइल एन अपील यही है कि आपने फिर पूरा जो कोर्ट ऑर्डर है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगानी होती है। ये एक अपर हायर फोरम ऑफ द कोर्ट में जाएगा। अब जैसे अगर आपको मजिस्ट्रेट से अक्विटल मिला तो फिर आप डीजे के पास जाएंगे, जो खुद चलाएगा, या तो फिर एडीजे को देगा। अगर डीजे की तरफ से भी आ गया तो आप उसे हाई कोर्ट में, तो जो भी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है वो ऑब्वियसली फॉलो होती है इसमें। ठीक है, ये ज्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है। वाई? क्योंकि अगर एक बार अपील मिल चुकी है अक्यूज को, तो किसी भी माइनर चीजों के लिए, माइनर डिस्क्रिपेंसीज के लिए या टेक्निकल इश्यूज पे कभी उसकी अक्विटल को वापस कन्विक्शन में नहीं टर्न करेंगे। इसके लिए कोई ग्रीवियसली या एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट ऐसा या तो फिर जज ने मिस कर दिया हो, या तो कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज हुई है कि जो बहुत ही ज्यादा आप उसको लेट गो नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा मटेरियल है, देन ओनली फिर ये आपकी अक्विटल की अपील एक्सेप्ट होती है। अदरवाइज अगर अक्विटल हो गया तो हो गया, उसको ज्यादा होता नहीं है। अच्छा, इसका मैंने ड्राफ्ट ढूंढा है, मेरे पास नहीं है, राइट? तो आई एम श्योर कि आपको कहीं से भी बहुत इजीली, बहुत ज्यादा लीगल ग्रुप्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्लेसेस होते हैं, वहां से मिल सकता है, राइट? क्योंकि मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा या मैंने पर्सनली कभी नहीं चलाया कि किसी अक्विटल को भी उन्होंने किसी ने अपील किया हो, प्रोसिक्यूशन नहीं या अदरवाइज। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल से होता है। और अगर कहते हैं ना कि अक्विट हो गया, आप जान छोड़ो, बस चल गया केस, तो यूजुअली यहाँ पे यही मेंटालिटी है कि हम बस हो गया अक्विटल तो हो गया। तो हम इट इज सेफ टू से कि ये बहुत ताबी रह गया है, और उसका एक्चुअल एलिमेंट या एक्चुअल एसेंस में इतना ज्यादा उसका यूसेज नहीं है। ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग और रिवीजन पिटिशन है। अच्छा, रिवीजन दोनों पार्टीज कर सकती हैं। अगर अक्विटल आया है तो वो प्रोसिक्यूशन कर सकती है, अगर कन्विक्शन आया है तो यस, कन्विक्शन की भी अपील हो सकती है, लेकिन डिविजन, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन की बात करें तो रिवीजन भी दोनों पार्टीज की तरफ से हो सकते हैं। अच्छा, जो अपील है वो हमेशा फाइनल ऑर्डर पे होता है। ठीक है, अपील इज ऑन द फाइनल ऑर्डर। ये जो रिवीजन है, रिवीजन इंटरिम ऑर्डर्स पे होता है कि ये फाइनल, ये इसका फाइनल जजमेंट नहीं है, लेकिन एक ऑर्डर है, और आप उसी कोर्ट में लगाते हो कि जी हम चाह रहे हैं कि आप अपना ऑर्डर देके रिविजन करें, और दिस इज हाउ इट इज सॉट। पहले रिकॉलिंग होती है, और फिर अगर आप ऊपर फ्रंट्स पे भी जाते हो अपॉन, तो दैट इज अ रिविजन। इसका मेन जो बेसिक बाइफर्केटिंग फैक्टर है वो ये है कि ये इंटरिम ऑर्डर्स पे होती है रिविजन, और जो जजमेंट होती है
जो फाइनल जजमेंट होती है उन पे अपील्स कैरी आउट होती हैं, ठीक है। अच्छा, लास्टली मुझे ये भी कहा गया था कि आप हैप्पीएस्ट कॉर्पस को भी थोड़ा सा कवर कर दें अगर, तो इसमें मैं आपको बस ये बता दूं कि हैप्पीएस्ट कॉर्पस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, जो जो मुझे गिवन सेक्शन दिए गए थे कवर करने के लिए। हैप्पीएस्ट कॉर्पस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन राइट, ठीक है, आपको अंडर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी किसी भी फॉर्म ऑफ इलीगल डिटेनमेंट है आप उसके अगेंस्ट लगा सकते हो, ताकि जो पर्सन इन क्वेश्चन है उसे रिकवर किया जाए, ठीक है। यूजुअली तो क्रिमिनल एलिमेंट्स या क्रिमिनल एसेंस में यूज होती है कि जी बंदे को उठा के लेके गए फॉर एग्जाम्पल, तो आपने हैप्पीएस्ट कॉर्पस लगा दिया या कुछ, लेकिन दिस इज ऑल्सो सेम फैमिली केसेस में। अगर फादर बच्चे के साथ कहीं चला जाता है तो मदर भी लगा रही होती है कि जी हैप्पीएस्ट कॉर्पस में मेरे बच्चे को प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली क्रिमिनल या स्ट्रिक्टली सिविल नहीं है, ये प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस भी सूरत में आपको रिकवरी ऑफ अ पर्सन इन क्वेश्चन करवानी है आप वो करवा सकते हैं, ठीक है। Let's just read it out quickly. Habeas corpus is a fundamental constitutional and legal remedy available to individuals who are unlawfully detained or imprisoned. The term habeas corpus literally means you shall have the body, मतलब हमें recovery करो किसी भी person की। In Latin, this legal mechanism is intended to protect the rights to personal liberty and to ensure that no one is held in custody without just cause. ये हम एग्जैक्ट बात कर चुके हैं। The petition should be written and must include the name and particulars of the detained person. ये नहीं है कि बस आप जिनके खिलाफ कंप्लेन करें उनकी ही इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके लिए कर रहे हैं कि जिसको डिटेन किया उसकी रिकवरी करवानी है तो ऑब्वियसली उसकी भी ज्यादा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। द नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन और अथॉरिटी डिटेनिंग द इंडिविजुअल, जो डिटेन कर रहा है कर रही है, अगर कोई बॉडी है वो कर रहे हैं तो उनकी आपने डिटेल्स देनी है, आपने ग्राउंड्स देने हैं कि डिटेंशन क्यों अनलॉफुल है, ठीक है। किस चीज में आपका कौन सा राइट कौन सा क्लेम क्या इन्फ्रिंज हो रहा है जिसकी बेसिस पे आपने, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि फादर ऐसे फॉर एग्जाम्पल फादर ऐसे बच्चे के साथ घूमने गया है, इट डज नॉट मीन कि उसने इलीगली डिटेन ही कर दिया है, लेकिन अगर मदर ये प्रूफ कर सकती है कि जी नहीं गार्डियनशिप मुझे दी हुई है, मेरे पास राइट है, वो बच्चा बगैर पता बगैर कुछ किए बाप लेके गया है, तो इट मीन्स उसने इलीगली डिटेन किया। अगेन दिस इज नॉट समथिंग जिसे फैमिलीज में बहुत ज्यादा लिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में सब लगा ही रहे होते हैं, तो आई जस्ट वांटेड टू आल्सो पुट दैट फॉरवर्ड, ठीक है। और भी अगर कोई रेलेवेंट फैक्ट्स और एनीथिंग एट लार्ज अगर है तो वो भी सारा कुछ इसमें कवर हो ही जाता है, ठीक है। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। जो जो हमने आज कवर किया उसकी मैंने एक यहाँ पे टेबल बना दी है फॉर यू। मैं क्विक गो ओवर करूंगी सो दैट आप सब जो भी मेरे साथ अभी तक है ऑन द कॉल उनको एक आइडिया हो जाए कि हमने क्या क्या कवर किया। सो बेसिकली सीआरपीसी को हमने देखा है, ठीक है। सीआरपीसी में हमने सबसे पहले ऑफेंसेस देखे और ऑफेंसेस के टाइप्स देखे। गाइस कैन यू सी द कर्सर आल्सो कि जो मैं मूव कर रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो हम कहाँ पे हैं। Yes, it's visible, ma'am. ठीक है, तो सीआरपीसी में सबसे पहले हमने ऑफेंसेस कवर किए, उसकी टाइप्स देखी। टाइप्स क्या थी? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेल, नॉन बेलेबल एंड कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। फिर हम आ गए इसकी स्टेजेस पे। स्टेजेस पे जाने से पहले स्पेसिफिकली हमने एफआईआर की बात की। एफआईआर में हमने सेक्शन 154 जिसके अंडर ये आता है ये बात की फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं, डेट कहाँ पे लिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आई ऑल्सो शोड यू अ वीडियो अ शॉर्ट क्लिप बेसिकली कि एफआईआर को रीड कैसे करना चाहिए, वो भी हमने कवर किया, ठीक है। इसके अदर स्टेजेस में क्या क्या आ जाता है कि जी एफआईआर के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट होती है, इंक्वायरी होती है, ट्रायल होता है, ट्रायल चलता है और फिर इस पे जजमेंट आ जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर यहाँ तक? गाइस इज इट क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, फिर हमने यहाँ की इसकी और जी फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि
अच्छा, जस्ट बाय द वे सीआरपीसी का भी पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस की बात की थी, फिर हम आ गए सीआरपीसी से डायरेक्ट कंप्लेंट की तरफ। डायरेक्ट कंप्लेंट कौन से सेक्शंस में कंडक्ट होती है, प्रोसीजर क्या होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ ज्यादा होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम आए बेल पे, बेल की टाइप्स डिस्कस की, ड्राफ्ट्स देखे और कोर्ट कौन से में क्या कब अप्लाई होता है वो सारा कुछ देखा। फिर सीआरपीसी की बात चलते दो और प्रोविजंस जो हमने टच किए, वो एक था अपील अगेंस्ट अक्विटल का, ठीक है, कि अक्विटल अगर हो जाए तो उसकी अपील कैसे क्या होती है, और दूसरा रिविजन पिटिशन क्या होती है। दोनों का मेन स्कोप ऑफ डिफरेंशिएटिंग हमने डिस्कस किया, विच इज के अपील हमेशा फाइनल जजमेंट्स पे होती है और रिविजन हमेशा इंटरम या इंटर जो ऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो ही जाती है, ठीक है। ये सारा सीआरपीसी के एम्बिट पे आता है। लास्ट में हमने थोड़ा सा हैप्पीज कॉर्पस को भी टच कर लिया, हमने इसका सेक्शन देख लिया, हमने बात कर ली कि ये इलीगल डिटेंशन का जो आपका एरिया या रेल में उसके अराउंड कवर होता है, एंड द फैक्ट दैट हैप्पीज कॉर्पस फॉल्स अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, ठीक है। दैट इज प्रीटी मच इट। I hope मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है, and thank you so much. If you have any questions, just let me know. So dear participants, session has been done from our speaker side. If you have any questions, ask one by one. Thank you. होस्ट अगर आप प्लीज लिंक से रिजॉइन करा दें क्योंकि लेस देन अ मिनट है, क्वेश्चन आंसर में टाइम लगेगा। जी उमर, अगेन रिपीट कीजिएगा, क्या कहा आपने? अगर आप जी ये कह रहे हैं कि हम अभी सब लीव करके अगर वापस से रिजॉइन कर लें, क्योंकि अभी टाइम आई गेस खत्म हो रहा है इस लिंक का। ओके ओके ओके। So if you have any questions, just let me know. am I audible? Yes, you Yes. are. So my question, ma'am, is that is FIR challengeable on grounds that it is manipulated, misinterpreted, or backdated? If yes, where should it be challenged and how? What should be the procedure for its challenging? See, FIR, if you want to challenge the FIR, it is through the trial court only, right? So there can be two circumstances, situations arising from it. The fact कि आपको पता चला है कि this is, an FIR जो आपके लिए लॉन्च की गई है, या तो फिर आप उससे बेल सीक करेंगे अगर आप ऑलरेडी अरेस्ट नहीं हुए, या तो अगर ट्रायल चल रहा होगा तो आप ट्रायल के थ्रू इसको वो करते। तो देयर इज नो प्रोविजन जिसमें आपको एफआईआर अलग से जाके चैलेंज करनी है, बट थ्रू द ट्रायल यू आर चैलेंजिंग द केस। आप ऑल एंड ऑल यही तो बोल रहे हो कि ये एफआईआर गलत है इसीलिए मैं बेगुनाह हूँ।
जब अक्विटल्स होते भी हैं तो अक्विटल में यही तो कहा जाता है कि जी द अक्यूज्ड इज इनोसेंट। इट मींस अगर अक्यूज्ड इनोसेंट है, इट मींस एफआईआर गलत है। ठीक है। और मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्लाइड 6 में आपने कहा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को अंडर डायरेक्ट कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट भी डेल्थ किया जा सकता है, बट अंडर सेक्शन 155 ऑफ द सीआरपीसी वहाँ पे होता है कि डेली डायरी का कंसेप्ट डेवलप किया गया है। अच्छा, डेली डायरी या जिससे हम एनसी भी कहते हैं, कि वो अलग से एफआईआर के अलावा एक रजिस्टर होता है जिसमें आपकी नॉन कॉग, अब जो एनसी है उसका नॉन कॉग ही इट्स एन एब्रिविएशन फॉर दैट, और उसमें डाला जाता है। तो अगेन ये फिर आपके ऊपर है, आपका डिस्क्रिप्शन। डायरेक्ट कंप्लेन, अगर आपके पास इतना मवाद है कि आपको लगता है कि जी मैं डायरेक्ट कंप्लेन करूंगा और वहां पे वो ज्यादा चल जाएगा, यू रादर गो फॉर दैट रादर देन हैविंग इट इन योर डेली डायरी। क्यों? क्योंकि डेली डायरी से यही है कि वो उस एक तो देखो, सारा मकसद ही ये होता है कि प्रैक्टिकली चीजें कितनी अप्रोचेबल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं देखने के लिए। तो यस ठीक है, हमारे पास ये है वो है। एक्चुअली फिर क्या आपको मूव करते हैं, एफआईआर ही इतना मर मर के, डोंट माइंड माय लैंग्वेज, बट अगर प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखाऊं, वो एफआईआर तो नहीं सही से परसू कर रहे होते, वो अपने प्रोसेस में वैसे ही इतने स्लो होते हैं। डू यू रियली थिंक कि अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है, will you be able to go and seek a claim from a direct complaint or a daily diary? तो फिर ये आपका डिस्क्रेशन आ जाता है। ठीक है। So my next question is, if after the grant of bail at any time during the proceeding, the other party notice or observe that there are some errors in bail before arrest, which were not contested by the other party, what shall they do in such circumstances? Okay, once, just a moment. अच्छा, once that you have been awarded a bail, ठीक है, वैसे यूजुअली वो कंटेस्ट होती नहीं है। ठीक है। इफ अगर होती है तो उसके लिए यू डू फाइल एन एप्लीकेशन, बट द कोर्ट स्क्रूटनाइजेस इट अ लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई ह्यूज फैक्ट ऑफ लॉ है जो मिसिंग है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको इसकी बहुत इजी एग्जांपल दूं कि जी जो अक्यूज है उसने तो लिख दिया कि जी देयर वाज नो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑन माय एंड, या कुछ उस टाइम पे किसी ने उसे क्रेडिबल नहीं करवा सकता था। लेकिन अगर बाद में चलते पता चलता है कि जी ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये तो करता ही ये काम है, तो यस, समथिंग लाइक दैट कैन बी ब्रॉट अप ऑन अ लेटर स्टेज, और फिर कैंसिलेशन ऑफ बेल भी हो सकती है। लेकिन अगेन देखिए, कभी भी अगर रिलीफ कभी मिलता है ना, तो रिलीफ मिलने के बाद उसे बहुत टाइटली एग्जामिन किया जाता है, अगर उससे आप वो रिलीफ वापस ले रहे हैं। तो इफ देयर इज अ वेरी बिग और ह्यूज ग्राउंड कि जी सिर्फ मेयर टेक्निकलिटीज पे, या मेयर कि जी आपने ये नहीं कंसिडर किया, आपने ये नहीं देखा कि इतना कोई माइनर सा अगर फर्क है, तो फिर उसमें इतना कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर कोई क्लियरिंग डिस्क्रिपेंसी है तो बेल फिर कैंसिल आउट भी हो सकती है एट एनी स्टेज। और मैम लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आज के टॉपिक से हट के है, बट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ही रिलेटेड है। एक फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन डिपोजिशन। ये स्वॉन आउट टेस्टिमनी ऑफ विटनेस होती है आउट ऑफ द कोर्ट, जो कि अक्सर हमारे पास फॉरेन कोर्ट्स में देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या डिपोजिशन का फिनोमेना है या नहीं, और अगर है तो कैसे प्रोसीड किया जाता है, पार्टीज की ओन डिस्क्रेशन से या कोर्ट के ऑर्डर से? देखिए, द टर्म जो डेपोजिशन कहते हैं, वो जो अभी आपने बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट्स में जैसे उनका मकसद यूज किया जाता है, वैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है। लेकिन डेपोजिशन पाकिस्तानी लॉ और पाकिस्तानी कोर्ट्स में इज यूज टू डिटरमाइन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। तो जो आपका वकील आपसे बयान कहलवाता है एग्जामिनेशन एंड चीफ, और उस पे जो फिर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, वो सारा एक पेपर पे आता है और आप उसके साइन करते हो, उस चीज को फिर हम डेपोजिशन कहते हैं। इफ देर आर एनी अदर क्वेश्चंस, बोले।
मैं काइंडली इसके जो ड्राफ्ट है ना, एप्लीकेशन के ड्राफ्ट हैं और जो केसेस के ड्राफ्ट हैं, काइंडली वो भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जिस तरह ये 265 के की एप्लीकेशन, 249 ए की एप्लीकेशन, ये क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद ये सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के लिए हमें एप्लीकेशन चाहिए होती है। हाई कोर्ट में क्या उसका प्रोसीजर है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट जो भी उसे कहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका जो मेन ड्राफ्ट होता है, वो काइंडली वो चीजें वो लाजमी सेंड कर दें और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा बता दें बस। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो द फैक्ट के 265 के आपने शायद अभी रेज किया था, 265, वो होता है कि आप कोर्ट से विड्रॉवल ऑफ द केस किसी भी पॉइंट पे मांग सकते हो। ठीक है, आप ये कहो कि जी केस में कोई ग्राउंड, जी इज देयर समवन, डिड समवन से समथिंग? अच्छा ठीक है, फिर मैं ही कंटिन्यू करती हूँ। एक सवाल था कि जी आप 265 के बारे में थोड़ा सा बताते, तो इट मीन्स के आप किसी भी टाइम पे कोर्ट को अप्रोच कर देते हो एज एन अक्यूज के द केस डज नॉट रियली हैव एनी ग्राउंड्स, केस की बस तारीखें हो रही हैं, चल नहीं रहा, कोई ऐसी ग्रीवियस बात है नहीं जिसको हम परसू करें, कंप्लेनेंट नहीं, तो आप हमेशा एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि जी केस को खत्म कर दिया जाए, जो कोर्ट कंसिडर करती है। और अगर उनको जेन्युइनली लगता है कि कुछ भी नहीं है केस के अंदर रह गया या यूजलेस है अब इसको आगे परसू करना, तो फिर केस उसी टाइम पे डिसमिस हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड जो भी पर्सन इन क्वेश्चन अक्यूज्ड है वो अक्विट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अबाउट द ड्राफ्ट, और फिर आपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए कहा, सर्टिफाइड कॉपी का तो एज सच कोई ड्राफ्ट नहीं है। अब आपने देखा होगा पैटर्न, हर जो भी कोर्ट के लिए ड्राफ्ट होते हैं उनका एक ऊपर पार्टी नेम्स, कोर्ट का नाम वर्सेस जहाँ पे नंबरिंग आती है आपकी केस की, वो सेम ही रहती है, राइट। नीचे का मवाद चेंज होता है, तो वो हमेशा अगर सेम भी रख के नीचे आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम चेंज कर लिया, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी, काफी लोग तो ये इन प्रैक्टिस अपनी पेन से अपनी हैंड रिटन भी लिख रहे होते हैं, नॉट नेसेसरली कि आपको प्रॉपर से प्रिंटेड वर्जन या कुछ चाहिए होता है। आपस पार्टीज का या जो ऊपर वो होता है कि जहाँ पे कोर्ट नेम लिखा है, केस नंबर लिखा है, आपके नाम लिखे हैं, वो सारा लिख के आप डायरेक्ट लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी। क्या क्या किस चीज की किस किस चीज की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, कितनी कॉपीज चाहिए, वो सारा कुछ आपको लिख के देना होता है। फिर नीचे आ जाता है कराची डेटेड और एडवोकेट फॉर अक्यूज, अगर आपकी साइड से है, कंप्लेनेंट तो कंप्लेनेंट की साइड से है, ऐसे करके आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन बनाते हैं। अच्छा अबाउट द ड्राफ्ट्स, मेरे पास देखिए जितने होंगे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो आगे फॉरवर्ड करूं। अगर मेरे पास नहीं होंगे तो आई विल आल्सो लेट यू नो अबाउट दैट, और फिर वो आप किसी से भी क्योंकि आई एम अस्यूमिंग कि कॉन्कॉर्ड लॉ ने बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे वकीलों के साथ जिनकी मेरे मुझसे भी ज्यादा एरिया ऑफ प्रैक्टिस रहा है या एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिस रहा है, तो आई एम श्योर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, मैम फाइनल 342 की स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा सा बता दें कि 342 स्टेटमेंट अगर जब देनी है तो उसमें क्या क्या चीजें ज्यादा जरूरी है। अच्छा 342 स्टेटमेंट मुझे ऐसे सेक्शन प्राइमरली याद नहीं आ रहा है, इफ यू कुड जॉब में मेमोरी और मुझे बताइए सेक्शन कौन सा था। 342 सीआरपीसी। 342 CRPC, मुझे उसका थ्री सीआरपीसी है, वो ओथ के साथ लेते हैं कि जी मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, जो भी कुछ होता है। सो बेस्ड ऑन दैट थैंक यू सो मच सेक्शन ऑफ मैम। सीआरपीसी, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। जी दैट इज व्हाट द सेक्शन इज अबाउट। चलिए, there are no more questions. Thank you so much for having me. And I guess let's end the session then, Anil.
Okay, ma'am, I think no question from participant side. So thank you so much, ma'am, for your precious time. Once again, thank you so much. It Thank was you. really Thank you amazing so session. much. And thank you again. Yes, ma'am. No, I am delighted. Thank you so much for having me. Thank you, ma'am.